Hello, good morning, my dear students. Today we are going to start our second chapter of English, class 6B. Class 6, B and A both are combined. We can't say B only. So, here in this chapter, the chapter name is the overcoat. In this chapter, we will read about a man who is having a overcoat. The overcoat is very old and it is very it become very dirty after some times. Then he need to spend some money to make a new overcoat, and he was not having so much money to get a new overcoat. So in this chapter we have to see this only, how he managed to buy a new overcoat. Okay, so let's start. A government servant on a budget find that he need to spend some of his money on an essential item. And here the essential item is the overcoat. The government servant was that man. The name of that man was Akaki Akivich. I am telling you earlier only. Here, in a certain department, there was a certain official, not a very high one. It must be allowed, sort of stature, somewhat pockmarked, red-haired, and short-sighted with a bald forehead. That means कि एक ऑफिसर था, मतलब एक डिपार्टमेंट में देयर वाज एन ऑफिशियल. ही वॉज नॉट वेरी हाई, मीन्स मतलब कि उसका हाई जो था काफ़ी लंबा नहीं था, कद का छोटा ही था. उसके चेहरे पे जो कुछ कुछ मार्क्स लगे हुए थे, कुछ कुछ धब्बे थे. बाल जो था रेड हेयर था एंड शॉर्ट साइटेड विद बाल्ड फॉरहेड. फॉरहेड वॉज बाल्ड, मतलब कि उसका चिकना था. बाल्ड मतलब कि जो बाल झड़ जाता है, पूरा खत्म हो जाता है वो. रिंकल चिक्स, द चिक्स वर रिंकल्ड, मतलब कि झुर्रियाँ पड़ चुकी थी चिक्स पे. एंड कॉम्प्लेक्शन ऑफ द काइंड वॉज sanguine. Sanguine here means reddish brown color. The color not black, not very fair, the reddish brown color. The St. Petersburg climate was responsible for this. As for his official status, he was what is called perpetual titular councillor. The color of his complexion was sanguine because of the climate. There was the climate of that area, the St. Petersburg, was very cold. So this all complexion were very reddish types. Okay, and he was perpetual titular. It means that he was holding a purely formal position without real power. मतलब कि उसका कुछ काम था लेकिन उसके पास कुछ खास पावर नहीं था. ठीक है. Over which, as is known, some writers make merry, crack their joke, obeying the praiseworthy custom of attacking those who cannot bite back. Then there were some other workers who cracked the jokes on that man. The name of that man was Akaki Akivich. Akaki Akivich. Okay, see here. And because of his behavior, he was so silent, so peaceful man. He just do his work. He was very silent. He don't argue even. मतलब कि उसका जो बिहेवियर था काफ़ी शांत था. लोग उसको कुछ भी बोलते थे, वो किसी का कुछ मतलब सुन के भी इग्नोर करता था. कुछ लोग थे ऐसे कि उसके ऊपर जोक मतलब उसका मजाक उड़ाते थे, उसकी राइटिंग का मजाक उड़ाते थे. उसका काम यही था
ही वॉज राइटर, मतलब कॉपी करने का काम था उसका। कुछ चीज़ें थी, मतलब पहले तो ऐसा ही होता था ना, अब फोटो स्टेट हो जाता है। नाउअडेज फोटो स्टेट इज अवेलेबल, बट अर्लियर देयर वर द वर्कर्स who used to just write again and again those all papers. So he was having that work only. Now, when and how he entered the department and who appointed him, no one could remember. मतलब कि उसका एज काफ़ी ज़्यादा था, किसी को याद नहीं था कि वो उसको डिपार्टमेंट वो कैसे आया, कब आया, किसने उसको अपॉइंट किया था, मतलब किसने उसे रखा था, कुछ याद नहीं था, किसी को कुछ नहीं पता था। His superior treated him in a coolly despotic fashion, मतलब कि उससे जो सीनियर थे उसको काफ़ी मतलब बिना इज्जत के बेपरवाही से उसके साथ पेश आते थे, कोई तरीका नहीं था उन लोगों का। Some sub-chief would thrust a paper under his nose without so much saying, copy or here's a nice interesting affair or anything else agreeable, as in a customary amongst. तो कुछ जो थे और कुछ जो चीफ मतलब सब चीफ थे जो वहाँ के वर्कर थे, तब उस तरीके से उसके आसपास पेपर दे देते थे बिना कुछ बोले, मतलब बिना किसी तरीके से, जैसे बोलते थे इसको कॉपी करो। और उसके बाद वो क्या करता था, लेट्स सी हियर, एंड ही टुक इट, मतलब वो देते थे और वो ले लेता था। ही टुक इट looking only at the paper, not observing who handed it to him. मतलब वो ये भी नहीं ध्यान देता था कि who is giving that copy to him, उसे वो कॉपी दे कौन रहा है, और whether he had to right to do so, simply took it and set about copying it. तो क्या करता था, वो कॉपी लेता था, वो पेपर लेता था और कॉपी करना शुरू कर देता था बिना कुछ पूछे, बिना कुछ भी किए, बस उसको बस बोलते थे कि कॉपी करो। वो ये भी नहीं देखता था कि उसको कॉपी करना चाहिए नहीं करना चाहिए, who has given it to me, कुछ नहीं। After that, the young officials laughed at and made fun of him and strewed bits of paper over his head. तो जो वहाँ के जो युवा थे, ऑफिशियल्स जो वर्कर थे काम करने वाले उसके साथ, तो उसके ऊपर हंसते थे, उसका मजाक उड़ाते थे और उसके ऊपर जो छोटे छोटे पेपर के टुकड़े होते थे फेंकते थे। कॉलिंग देम स्नो, वो फेंक के कहते थे कि अरे, जैसे नहीं वी डू लाइक किसी का मजाक उड़ाना, कुछ फेंक दिए, देखो देखो बारिश हो रहा है, देखो देखो स्नो पड़ रहा है, तो उसको जब वो पेपर फेंकते थे एंड दे कॉल इट स्नो, कि देखो स्नो है ये। बट अकाकी अकीविच आंसर्ड नॉट अ वर्ड, लेकिन अकाकी अकीविच जो था वो कुछ नहीं बोलता था, एक वर्ड नहीं बोलता था। any more than if there had been no one there beside himself. It even had no effect upon his work. ऐसा होता था, लोग उसको इतना डिस्टर्ब करते थे, बट मतलब जैसे कि वो कुछ डिस्टर्ब ही नहीं हो रहा हो, मतलब वो अपने काम में इतना अच्छे से लग जाता था कि उसको ऊपर लोग हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, फेंक रहे हैं, नथिंग डिस्टर्ब हिम। Okay, amidst all these annoyances and he never made a single mistake in a letter. और होता क्या था कि इतना कुछ उसको लोग बोलते थे, चिढ़ाते थे, बेइज्जत करते थे, फिर भी एक वर्ड का मिस्टेक अपने कॉपी में नहीं करता था। But if the joking became wholly unbearable, as when they joked his hand and prevented his attending to his work, he would exclaim, "Leave me alone. Why do you insult me?" Okay, see, जब हर चीज का एक हद होता है, तो वो जब अनबियरेबल, वो जब बर्दाश्त से बाहर निकल जाता था, तो ही जस्ट चिल्लाता था, बोलता था कि मुझे अकेला छोड़ दो, क्यों मेरा इंसल्ट करते हो,
वाई डू यू इंसल्ट मी, वो बोलता था. एंड देयर वॉज समथिंग स्ट्रेंज इन द वर्ड एंड द वॉइस इन विच दे वर अटर्ड. और जो उसका आवाज जो निकलता था, इट वॉज डिफरेंट. जो मतलब वो तो रेगुलर बोलता नहीं था कुछ भी, बट समटाइम्स ही स्पीक्स. तो थोड़ी उसकी आवाज में अलग ही अटरनेस थी, मतलब अलग ही आवाज था उसका. इट वुड बी डिफिकल्ट टू फाइंड अनदर मैन हु लिव्ड सो इंटायरली फॉर हिज ड्यूटी. तो ऐसा इंसान मिलना मुश्किल था, काफी मुश्किल था, जो कि इतनी अच्छे से, इतने ढंग से अपने ड्यूटीज को करे. इट इज नॉट इनफ टू से दैट Akaki labored with zeal. No, he labored with love. In his copying, he found a varied and agreeable employment. तो ये नहीं कहा जा सकता था कि मतलब वो काफी लगन के साथ काम करता था. ऐसा ही नहीं था, बस वो काफी प्यार से भी, उसको अपने काम से काफी प्यार भी था. वो जो जब कॉपी करता था तो लगन और बहुत ही भाव से उसको कॉपी करता था. He found a very agreeable employment. Okay, the time is being over, so we will see the part 2. The next will be given to you. Next video will be given to you. Okay, so keep watching the video. Thank you.